Jai Hind students. So I hope you are fine and healthy, safe at your home. Already I taught you about the introduction of the tangent and normal. I hope you understood the concept of equation of tangent, slope of tangent, equation of normal, slope of normal. So today we will start with the exercise 6.3. You will get more clarity while you will solve these kind of questions. Before I start, press those who are new to the channel, subscribe the channel and press the like button and press the bell icon also. So first question of NCERT 6.3, find the slope of tangent of the curve. So curve is given to you, y is equal to 3 x की power 4 minus 4, x at x is equal to 4. So we have to find out the slope of tangent, and slope of tangent you know dy upon dx. So differentiate this, differentiate with respect to x. So differentiate with respect to x. So dy upon dx is equal to 4, now down आया, 4 3s are 12, x का cube minus 4. dy upon dx at x is equal to 4, that is 12, 4 into 4 minus 4. So क्योंकि we have to find out the slope of tangent, और slope of tangent किस पे निकाली जाती है, पॉइंट पर. So सबसे पहले हमने dy upon dx निकाला, that is 12x का क्यूब minus 4. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 64, 64 मल्टीप्लाई 12, that is 4 2s are 8, 6 2s are 12, 4 6 8 6 7 768, 768 minus 4, तो 768 minus 4 होता है 764. So this is the slope of the tangent at point x is equal to 4. Second part देखें. Second part हमें कहता है find the slope of tangent again. Y is given to you. So problem 2, that is y is given to you x minus 1, x minus 2, where x is not equal to 2 क्योंकि ये not defined हो जाएगा, and we have to find the slope at x is equal to 10. We have to find the slope of tangent at x is equal to 10. So this is in the form of u upon v. First of all, find out dy upon dx, differentiate with respect to x. dy upon dx, that is denominator का square, denominator as it is इसका करेंगे 1, then minus numerator as it is denominator करेंगे again 1. So what is your answer? That is x minus 2 minus x plus 1 upon x minus 2 का whole square. ये cancel out, that is minus 1 upon x minus 2 upon 2. Now we have to find out the slope of tangent, और slope of tangent किस point पर? At x is equal to 10 पर. So that is equal to minus 1 upon 10 minus 2 8, 8 का square, that is minus 1 upon 64. So like this you can find out the slope of the tangent. Pause the video to note down. Problem 3, find the slope of the tangent at curve where x coordinate is given 2. तो मैंने लिखा है x is equal to 2. You have to find the slope of tangent of the curve. So वही same again, differentiate with respect to x. So dy upon dx is equal to 3x का square minus 1. Then dy upon dx, slope of tangent at x is equal to 2 is 3 into 2 का square minus 1. 4 3s are 12 minus 1, 11. So this is the slope of the tangent to the curve, okay, where x coordinate is equal to 2. Now problem 4th, come to problem 4th. This is again find out the slope of the tangent whose on this curve whose x coordinate is given to you. यानी हमें slope of tangent निकालनी है इस point पर.
जिसका x कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, जिस पॉइंट पे निकालनी है. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. dy अपॉन dx is equal to 3x का स्क्वायर माइनस 3. Now dy upon dx at x is equal to 3, that is equal to 3 into 3 का स्क्वायर माइनस 3. 9 9 3 27, 27 minus 3, that is 24. So slope of the tangent when x coordinate is given to you, that is 24. Pause the video to note down. Now this question number 6 is important according to paper point of view, CBSE point of view. The question is, find the slope of tangent and slope of normal where x and y are given to you at theta is equal to pi by 4. पे चेक करना है, दोनों की स्लोप निकालनी है. Now this is a parametric form where x and y is associated with theta, another function theta. So first of all, what to find? dx upon d theta, dy upon d theta, then we will find out dy upon dx. So first of all, हमें स्लोप निकालने के लिए क्या निकालना है? dy upon dx. So it is associated with theta, so I have to find dy upon d theta upon dx upon d theta. तो निकालते हैं. सबसे पहले x is equal to a cos cube theta. So differentiate with respect to theta, differentiate with respect to theta. यहां पे y is equal to a sin cube theta. So क्या आ जाएगा? dx upon d theta. a कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया, पावर में एक कम हो गया. अब cos की करेंगे, cos की होती है माइनस साइन थीटा, कॉमा. y की करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन डी थीटा. 3 नीचे, पावर में एक कम हो गया, साइन थीटा का करेंगे, दैट इज cos थीटा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी थीटा एंड dx अपॉन डी थीटा इज dy अपॉन डी थीटा. सो dy अपॉन डी थीटा, सॉरी dy अपॉन dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? dy अपॉन डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा. कैंसल आउट, a से a कैंसल, सो दिस इज माइनस tan theta. Now we have to find slope when, slope of क्या? Tangent when theta is equal to pi by 4. So dy upon dx when theta is equal to pi by 4, that is equal to minus tan pi by 4, that is minus 1. Now we have to find slope of normal. स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है? माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx. सो दैट इज इक्वल टू माइनस 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4. सो माइनस 1 dy अपॉन dx, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे कितना आया था? माइनस 1. तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1, दैट इज 1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1. So this is very important question according to paper point of view. Now come to problem 6. This is also same, but here we have to only find, क्या निकालना है? सिर्फ slope of normal only. So for, but again x and y is associated with theta. ये दोनों के दोनों फंक्शन थीटा के साथ एसोसिएट कर रहे हैं. So सबसे पहले x is equal to 1 minus a sin theta, y is equal to b cos square theta. Now differentiate with respect to theta. This is dx upon d theta 0 minus a cos theta. इसका 0 हुआ, a कांस्टेंट है, साइन का करेंगे cos theta. dy upon d theta
पावर डाउन, पावर में एक कम, कॉस का करेंगे माइनस साइन थीटा. नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल. बिफोर स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है dy अपॉन dx. ओके, किस पे? पॉइंट पे. पॉइंट क्या है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. सो सबसे पहले dy अपॉन dx क्या होगा? दिस वी विल पुट आफ्टरवर्ड. dy अपॉन dx क्या होगा? dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा. तो dy अपॉन d थीटा इज माइनस 2b cos थीटा sin थीटा. dx अपॉन d थीटा माइनस a cos थीटा. कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट. सो व्हाट इज dy अपॉन dx? दैट इज 2b sin थीटा अपॉन a. 2b sin theta upon a. Now we have to find slope of normal at point theta is equal to pi by 2. So slope of normal वो क्या होती है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कितना है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. पुट करते हैं -1 अपॉन इसको 2b अपॉन a साइन थीटा. थीटा की जगह पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2. तो व्हाट इज योर आंसर? साइन पाई बाय 2 होता है 1. a चला जाएगा ऊपर, माइनस a अपॉन 2b. सो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ this exercise, find the point. Now we have to find the point. हम अभी तक हम क्या कर रहे थे? Till now we are finding the slope of the tangent, slope of the normal. Now we have to find the point at which the tangent, जो tangent है किसका? कर्व का, is parallel to x axis. So first of all we have to find out the tangent. So solution, curve is y is equal to x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7. नाउ फाइंड आउट द टेंजेंट. टेंजेंट कैसे निकालते हैं? dy dx, दैट इज 3x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9. नाउ दिस टेंजेंट, लिसन केयरफुली, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू, इट इज गिवन द टेंजेंट is parallel to x axis. Or in introduction video I taught you कि if tangent is parallel to x axis it means dy upon dx is equal to 0. अगर कोई भी टेंजेंट, ध्यान से देखें, x axis के पैरेलल हो जाता है, इसका मतलब dy upon dx क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. कोई भी एंगल नहीं बनाएगा वो. So टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो पुट, और यू कैन राइट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. सो 3x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. फाइंड आउट द फैक्टर. मल्टीप्लाई करके -3 आना चाहिए, प्लस माइनस करके -2 आना चाहिए. 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 3x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3. सो 3 कॉमन ले लो, x माइनस 3 कॉमन आ गया, यहां पे x प्लस 1 कॉमन आ गया. नाउ पुट दिस इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू एक 3 आ गई और एक x की वैल्यू कितनी आ गई? -1. सो दीज आर द x कोऑर्डिनेट. नाउ वी हैव टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट आल्सो. सो टू फाइंड आउट द y कोऑर्डिनेट, पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट. सो पुट
इन इक्वेशन फर्स्ट। सो x इज इक्वल टू 3 अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। सो 3 का क्यूब ये कैंसिल आउट हो गया, नो नीड टू सॉल्व। 9 3s are 27, that is minus 20. Second, when you will put x is equal to minus 1. Second, when x is equal to minus 1, so y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 का क्यूब माइनस 3 -1 का स्क्वायर माइनस 9 -1 प्लस 7। तो -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, तो ये कितना बन गया, -4। 9 - 4 5, 7 + 5 12। तो पॉइंट्स आर, जब x 3 है व्हाट इज y, -20। जब x -1 है y कितना है, 12। So these are the points on the curve where tangent to the curve is parallel to x-axis. So very important question। और कभी भी जैसे यहां पे हम पॉइंट लेते हैं, in most of the book, some of the book it is written let the point is hk। आप यहां पे x और y ही रहने दें, no need to change in h and k, so it become very easy now। So pause the video to note down। Now question number 8, again it's little bit different question। Find the point on the curve। इस कर्व के ऊपर पॉइंट निकालने हैं, कंडीशन क्या है, at which the tangent is parallel to the chord। जो टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी वो किसके पैरेलल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो बनेगी, टेंजेंट जो बनेगा वो किसके पैरेलल होगा, उस कॉर्ड के, जो कॉर्ड इन दोनों पॉइंट से मिलके बनाई जा रही है। सो लिसन वेरी केयरफुली, देखो ध्यान से देखते हैं। एक कर्व है, कोई भी कर्व ले लेते हैं, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये कर्व मैंने ले ली फॉर एग्जांपल। सो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं किसी पॉइंट पर, इस पे। नाउ उसने ये कहा कि हमें वो पॉइंट निकालने हैं जिससे ये टेंजेंट जो ड्रॉ हुआ जिस पॉइंट से, वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू द पॉइंट, टू द कॉर्ड। वो कॉर्ड किससे बन रही है, इन दो पॉइंट से बन रही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो इस कर्व का टेंजेंट बनेगा, इस कर्व का टेंजेंट बनेगा और इस कॉर्ड को मिला के, इस कॉर्ड का जो टेंजेंट बनेगा, ध्यान से देखें, किसी भी कॉर्ड का जो स्लोप होती है, सॉरी टेंजेंट नहीं स्लोप, इस कॉर्ड की जो टेंजेंट की स्लोप बनेगी और इस कर्व की जो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगी और इस कॉर्ड की जो स्लोप बनेगी, वो दोनों पैरेलल हैं। इट मींस दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। सो हमें क्या करना है, दोनों की स्लोप निकालनी है। कर्व से निकालनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट और कॉर्ड से निकालनी है स्लोप ऑफ कॉर्ड। सो सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू, जब भी पॉइंट आए लिखने के लिए आप लिख सकते हैं लेट द पॉइंट इज P, x y ही डिनोट कर दें और एच के भी ले सकते हैं, दैट इज अप टू यू। सो y की वैल्यू ये आई हमारे पास। अब हमें टेंजेंट निकालना है, सो dy अपॉन dx, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दैट इज 2x - 2 और x - 2 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। नाउ कॉर्ड, सबसे पहले स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड, और स्लोप ऑफ कॉर्ड कैसे निकाली जाती है, ये कॉर्ड है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A पॉइंट कितना दे रखा है 2 0, B पॉइंट कितना दे रखा है 4 4। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगी, y2 - y1 अपॉन x2 -
x1. So that is 4 minus 0 upon 4 minus 2. 4 upon 2, that is 2. Now what is the condition given to you? कंडीशन क्या गिवन है? वो ये गिवन है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पैरेलल होगी किसके? इस कॉर्ड के। पैरेलल होने का मतलब है कि दोनों की जो स्लोप है वो आपस में क्या होगी? व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब उनकी स्लोप जो होती है वो क्या होती है? इक्वल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो टेंजेंट की स्लोप कितनी है? 2x माइनस 2। कॉर्ड की कितनी है? 2। कैंसिल आउट, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, सो पुट दिस इन द कर्व। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1। सो पॉइंट्स आर x की वैल्यू 3, y की 1। दिस इज योर सॉल्यूशन। एंड इफ यू विल टेक द पॉइंट h और k, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज दिस इन द फॉर्म ऑफ h एंड k। फिर वो h और k में आ जाएगा, then you have to find out this solution, otherwise leave as it is। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और चीज, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकाली जाती है वो किसी पॉइंट पे निकाली जाती है, बट मैंने x और y ही पॉइंट लिए हैं, तो यहां पे अगर मैं पुट भी करूंगा तो वो सेम ही बनेगा, इसलिए मैंने यहां लिखा नहीं। बट इफ यू विल कंसिडर, ध्यान से देखना, अगर आप इसके बदले h एंड k लेते हैं तो जब आप dy अपॉन dx निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स वाई पे नहीं निकालेंगे, एच के पे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा उस केस में? dy अपॉन dx h एंड k। फिर वो क्या बनेगा? 2x की जगह पे h माइनस 2, लाइक दिस इट विल अपीयर। और जब ये आप पॉइंट लेंगे तो आप इस इक्वेशन को भी चेंज करेंगे h और k में, तो ये क्या बन जाएगी? k इज इक्वल टू h माइनस 2 का स्क्वायर। क्योंकि लास्ट में जो आपके पास वैल्यू यहाँ पे x की आ रही है, व्हेन यू विल पुट h एंड k, तो वो h की आएगी और फिर आपको k की निकालनी पड़ेगी। वैल्यू विल बी सेम, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी टू टेक x एंड y, नो नीड टू टेक दिस। सो आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉज द वीडियो टू नोट। Okay, come on. Problem 9. Find the point on the curve. इस कर्व के ऊपर at which, जिसका the tangent is this line, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखें कि find the point on the curve, इस कर्व के ऊपर हमें पॉइंट निकालने हैं, बट at which, कौन से पॉइंट? जिस पे जो जिसका टेंजेंट होगा वो इस लाइन के टेंजेंट के इक्वल होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि x और y क्या है? लीनियर है। सो नाउ कम ऑन, सॉल्यूशन। हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। लेट द पॉइंट इज, लेट द पॉइंट्स आर, या पॉइंट इज, लेट द पॉइंट p x y, सेम पॉइंट। Okay, now find out dy upon dx, 3x का स्क्वायर माइनस 11। Equation of line is given to you. This is first, this is second. This is what? Slope of tangent to the curve. अब second, equation of line. Equation of line कितनी है? y is equal to x minus 11. Slope of line कितनी आ जाएगी? dy upon dx is equal to 1. Now it is given that both the slopes are equal. So हम इनको इक्वल रखते हैं, 3x का स्क्वायर
-11 इज इक्वल टू 1, 3x का स्क्वायर इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो 2 पॉइंट बन गए, एक प्लस और एक माइनस। नाउ फाइंड आउट y। सो फर्स्ट when x is equal to 2, so you can put anyway here or here, so x is equal to 2, तो x is equal to 2 अगर मैं यहां पुट करता हूं, फर्स्ट में पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का क्यूब दैट इज कितना 8 माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो दैट इज 8 माइनस 22 प्लस 5, दैट इज -9। अब ध्यान से देखें, क्या ये -9 यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो x की वैल्यू यहां 2 पुट कर दो, 2 माइनस 11 y इज इक्वल टू -9, तो पॉइंट क्या आ गया, 2 minus 9। Whenever these kind of questions are there, जब हम दोनों की स्लोप को इक्वल कर रहे हैं, तो जो पॉइंट्स निकलते हैं वो दोनों को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर आप इसमें पुट कर रहे हैं तो उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसमें पुट कर रहे हैं तो वो पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ सेकेंड केस, when x is equal to -2, again put in equation first, put in equation first, y is equal to -8 plus 22 plus 5, तो that is -19। तो x की वैल्यू -2 यहां पुट करता हूं तो -13 आता है, -19 नहीं आता, so it does not exist, yeah, it does not satisfy, it does not satisfy the condition, the condition। सो जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉइंट आगे 2 and -9। सो यू हैव टू चेक ऑल्सो in these kind of questions। Pause the video to note down। Now again type third, very important, in first type we found slope of tangent, slope of normal, in second type we found find the point, in third now we are going to find equation of lines, it means equation of tangents। So find the equation of all lines having slope, जिसकी स्लोप हमें कितनी दे रखी है, -1, and that are tangent, और tangent to the curve is y is equal to 1 upon x minus 1। इसका मतलब ये हुआ that are tangent to the curve, जो इसका टेंजेंट निकलेगा और ये जो हमें टेंजेंट दे रखा है, ये जो हमें स्लोप दे रखी है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये स्लोप एंड जो इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली जाएगी। सो नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व जो भी हमें दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। सो डिफरेंशिएट with respect to x to find out the slope of tangent। so slope of tangent, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x। अब स्लोप तो हमें गिवन है बट वी नीड पॉइंट्स, सो ये सारी चीजें हम सिर्फ पॉइंट्स निकालने के लिए कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, dy अपॉन dx, दैट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 की करेंगे 0, नो नीड टू राइट, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर की करेंगे दैट इज 1। नाउ दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमने कर्व की निकाली वो किसके इक्वल है,
जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने निकालनी है उसकी स्लोप के इक्वल है। सो -1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो जैसे ही स्क्वायर वहां जाएगा ये क्या बनाएगा, प्लस माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू आई। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू आएगी अब। तो जब x 2 है तो y कितना होगा, 1। जब x 0 है तो y कितना होगा, -1। So these are the points. So points on the line are, कौन से पॉइंट बने, एक बना 2 1, दूसरा बना 0 -1। और ये जो x और y की वैल्यू निकाली गई, ये जो पॉइंट निकाले गए हैं, ये नहीं है, ये कौन से हैं, x1 y1, जो पॉइंट पास कर रहे हैं। सो नाउ फर्स्ट व्हेन, जब ये पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ लाइन EQ, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस, दिस इज y1, स्लोप हमें गिवन है x माइनस 2, y माइनस 1 माइनस x प्लस 2। सो इसको इधर ले आते हैं, x प्लस y, देन -2 दैट इज -3 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन बनी विद दिस पॉइंट। नाउ जब ये पॉइंट है देन y माइनस y1 यानी +1, स्लोप है -1, उसके बाद x माइनस 0, सो y प्लस 1 इक्वल टू -x, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड equation of lines are x plus y minus 3 equal to 0, x plus y plus 1 equal to 0. So these are the required equation of line having slope -1. So जब भी equation of line निकालने के लिए आएंगी, you have to find out the point, you have to find out the slope। यहां पे स्लोप ऑलरेडी गिवन थी, वी ओनली फाउंड पॉइंट्स और वो हमने पुट किए, और जो भी हम पॉइंट निकालते हैं वो ये वाले होते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो x और y में तो आप यहां पे ही लिख लें, लेट द पॉइंट्स आर x1 y1। तो ये जो पॉइंट निकलेंगे फिर आपको जो इक्वेशन बनती जाएगी वो x1 y1 में बनेगी, x और y में नहीं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था h एंड k का। So likewise you have to solve the question. So in this video we only did question number 1 to question number 10. You all have to finish these questions. I hope these are very simple questions. You will not face any kind of problem while solving these questions. Finish the task, but still if you face any kind of difficulty, so you can send me SMS or WhatsApp, or you can write on a comment box. Till that, Jai Hind.